It's not easy being an artist. From seeking to inspiration, then execution, then showing our work to the world, and then keeping ourselves motivated and going on. That is the toughest part, I feel, because if you're an artist, you know what I'm saying, that we artists don't get that recognition that we actually need, and that is the toughest part, to keep ourselves motivated and going in this field. It is really, really very tough. I have been there. I'm still there somewhere. I don't know, but I wanted to talk about it because there are a lot of artists out there who, must be seeking for inspiration. So if you are one of them, this video is for you. Welcome back to Ru Creates. This is Rutuja. So you already know by the intro, I guess you know that we are going to talk about inspiration, execution and motivation. Yes, inspiration, execution and motivation. So why this topic today? Like, why? Because maybe I need it myself, so I thought of talking about it. So yes, without any further ado, let's get into the video. तो सबसे पहली बात, आज मैं ऐसे ब्लॉग स्टाइल में क्यों बात कर रही हूँ, लाइक क्यों वीडियो बना रही हूँ? ऑब्वियस रीजंस, मैं सेम वीडियो शूट करके एक ही पोजीशन में एक ही जगह पे बोर हो चुकी थी, इसलिए दिस. सो इफ़ यू लाइक इट, डू लेट मी नो बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं, एंड शुड आई डू मोर सच वीडियोस और नॉट. बट येस, सो लेट्स स्टार्ट बाय लिटिल स्टोरी टेलिंग. तो ऐसा टाइम था ऑफ माई लाइफ when I was extremely demotivated. मैं हमेशा demotivated रहती थी, and I needed to talk to my friend or talk to someone in order to get motivated again. और ऐसा बहुत टाइम तक चलता था. हर बार, हर दूसरे दिन, हर सुबह शाम ये मेरा साइकिल चलता रहता था. I used to get demotivated, then I used to talk to my friend, and then again I used to get motivated. मैं खुद से मोटिवेशन सीख नहीं कर पाती थी, या मैं खुद को, हम कह सकते हैं, उठा नहीं पाती थी. तो आई गेस टाइम हो चुका है इस चीज़ के लिए, बट अभी वैसा नहीं है. अभी भी बहुत से टाइम ऐसा होता है दैट आई फील डीमोटिवेटेड, बट अभी मैं सीख चुकी हूँ कि खुद को वापस कैसे उठाते हैं. सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू ऑल. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द 3 books दैट आई found really helpful during that time, that period of my, what you can say, of my life. So yes, I wanted to talk about that 3 books, and that will help you to get out of all of this. And if you're an artist, you will definitely love these books. So let me introduce you all to the 3 beautifully written, beautifully executed, and what I would say, simple, इतनी simple language में कोई भी book आज तक मैंने नहीं पढ़ी है. उप्स, ठीक है. So I was talking about these 3 books. तो ये ट्रायोलॉजी है ऑस्टिन क्लेयन की. So the first book from this trilogy is Steal Like an Artist. Second book is Show Your Work. Third book is Keep Going. So these 3 books are just amazing. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, पर बोलना तो पड़ेगा ना, उससे फिर आप लोगों को समझ में कैसे आएगा. Okay, so yes, I'll try to explain each and every book to you all. So who is Austin Kleon? Austin Kleon is an American writer, illustrator and a creativity coach. जिसने ये 3 ट्रायलॉजी में, वो भी उल्टा है, 3 बुक्स लिखी. तो ट्रायलॉजी में 3 बुक्स होती है. तो उसमें से ये पहली बुक है Steal Like an Artist. So what does it mean? इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट बनके तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो चोरी करके गुजारा करो. As simple as that. नहीं, ये नहीं है. इसका मतलब है कि चोरी करके आर्टिस्ट कैसे बना जाए. बेसिकली हमें बस चोरी करनी है, और उसके ऊपर 10 की लेसन है इस बुक में. पूरे 10 चैप्टर्स इज ऑल अबाउट हाउ टू डू चोरी, हाउ टू स्टील एंड बिकम एन आर्टिस्ट. सो लेट्स गेट इनटू इट एंड लर्न हाउ टू स्टील. ये चोरी ऐसी है जिससे हम कुछ हमारा अलग बनाए. तो एवरी वन अराउंड अस इज डूइंग द सेम थिंग. दे आर स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम समवन एंड दे आर मेकिंग देयर ओन थिंग एंड बिकमिंग एन आर्टिस्ट. और हम सोचते रहते कि ऐसे कैसे हम कहीं से कुछ देख ले और फिर उसे कॉपी कर ले. इसे कॉपी करना नहीं कहते, इसे इंस्पायर होना कहते हैं. और हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में से हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन क्लेयन, जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं और हमारा कुछ अलग से बना सकते हैं. और इसे चोरी नहीं बोलते, इसे इंस्पिरेशन लेना बोलते हैं, और हर कोई यही करते आ रहा है. सो हमें ये करते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए. We shouldn't think about it. We shouldn't think about it. We should give it a thought and try to get inspired from the things that we see around us. And that is actually what Steal Like an Artist means. ज़्यादा खुश मत हो जाओ, चोरी करना इतना आसान भी नहीं है. You need to keep 2 things in mind. One thing is good chori and bad chori, which is good theft and bad theft. So what is good theft? Good theft is nothing but giving 100% credits to the person or to the thing that you got inspired from. And second is not taking the ownership, and सेम ही हो गया ना, सॉरी. सो येस, गिविंग क्रेडिट्स एंड नॉट टेकिंग द ओनरशिप. सेकंड इज नॉट कॉपिंग और इमिटेटिंग देयर वर्क completely. You should mash up, you should remix and then make something out of it. And giving respect and honoring them is good theft, and bad theft is totally opposite to it. So you should keep 2 things in mind. So yeah, that is what it is.
So second lesson from this book is don't wait for the right time. अभी ये तो हर कोई तुम्हें बोलता आ रहा है, हर किसी से सुना हुआ है, but I still have to explain this क्योंकि ये बुक का पार्ट है. So yes, so basically if you want to become a writer, you shouldn't keep reading books ये सोच के कि मैं बहुत पढ़ लूँगी और फिर उसके बाद I will start writing. नहीं, if you want to become a writer, start writing today. If you want to become a YouTuber, start making videos today. वेट मत करते रहो कि स्किल डेवलप हो जाएंगे फिर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँगी या दूंगा. नहीं, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस टुडे. मैं खुद ये कर चुकी हूँ. मतलब आई वॉज अ पर्सन हु यूज्ड टू थिंक कि मैं रेडी नहीं हूँ यूट्यूब के लिए, और मैंने 2 से 3 साल इस चीज़ में वेस्ट किए थिंकिंग कि मैं स्किल्स डेवलप कर लूँगी एंड देन आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल. और कुछ नहीं होता है ऐसा, ये सब मोह माया है, सब झूठ है. यू हैव टू स्टार्ट द डे द थॉट केम इनटू योर माइंड कि तुम्हें ये करना है. यू हैव टू स्टार्ट देन एंड देयर एंड देन ओनली यू विल बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम. बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी साउंड हुआ ना, और मैं हूँ भी नहीं ज्ञानी. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक व्हिच इज अपने हाथों का इस्तेमाल करें. सो दिस बुक सेज दैट डोंट डू एवरीथिंग डिजिटली, ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स फिजिकली. तो जब हम कोई चीज़ फिजिकली करते हैं तो हमारे हाथ उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे ब्रेन को स्लो डाउन होने में हेल्प होती है. सो दिस इज़ रियली साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल. सो बेसिकली आई गिव यू एन एग्जाम्पल. मुझे जब मेरा मूड ऑफ होता है या ओवर थिंकिंग होता है या बोर हो रहा होता है, आई स्टार्ट कुकिंग. तो मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं जब कुकिंग करती हूँ मेरा दिमाग एकदम से शांत होने लगता है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और खुश फील करती हूँ. तो मुझे लगता था कि ये मेरा हॉबी है, मुझे पसंद है, इसलिए मुझे ऐसा फील होता होगा. बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि दिस इज साइकोलॉजिकल. मेरे हाथ इसमें यूज़ होते हैं तो मेरे ब्रेन को सिग्नल जाता है, मेरा ब्रेन स्लो डाउन होने लगता है. जो भी दिन भर की थकान है, स्ट्रेस है, खिचड़ी जो भी है, वो सब कुछ शांत हो जाती है एंड आई कम्प्लीटली गेट एंगेज्ड इन वन थिंग. और वो करने से मेरे को हेल्प होती है बहुत ज़्यादा अगले दिन मुझे प्रोडक्टिव रहने में. सो ट्राई दिस थिंग, ट्राई टू यूज़ योर हैंड, डू समथिंग, सम एक्टिविटी. कोई भी चीज़ ढूंढ लो. पेंटिंग हो सकता है या फिर राइटिंग हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फाइंड योर थिंग. अभी मैं कुछ लोगों को पूछती हूँ देयर हॉबी, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़ पूछना कि व्हाट इज़ योर हॉबी, क्योंकि आई नो उसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी. सो इसलिए आई आस्क एवरीवन. तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें गेमिंग पसंद है, हमें गेम्स खेलना पसंद है, सीरीज़ देखना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है. या यूर राइट, पर अगेन ये डिजिटली हुआ ना, तो फिजिकल कहाँ हुआ. तो वो चीज़ें तो है कुछ लोग को पसंद है, बट अदर देन दैट ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली फिजिकल, जिसमें स्क्रीन इन्वॉल्व ना हो. क्रिएट व्हाट यू विश एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ऐसी बुक पढ़नी है जो अभी तक किसी ने लिखी ही नहीं है, तो खुद लिखना स्टार्ट करो, खुद लिखने की कोशिश करो. अगर तुम्हें ऐसा वीडियो देखना है जो अभी तक है ही नहीं, पर तुम्हें लग रहा है कि ऐसे वीडियोस भी बनने चाहिए, तो उठो और खुद ऐसी वीडियोस पे रिसर्च करो और ऐसी वीडियोस खुद बनाने की कोशिश करो. सो बेसिकली मेक स्टफ फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, बी योर ओन टारगेट ऑडियंस. अपने काम को अपने तक मत रखो, जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करो. क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इफ़ इट्स नॉट परफेक्ट यू विल गेट टू नो व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव. तुम्हें अच्छा फीडबैक मिलेगा. सो दैट इज़ टेक्निकली गुड फॉर यू, राइट. सो कीप शेयरिंग. डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम एंड परफेक्ट प्लेस. जो है, जैसा है, जहाँ से है, जस्ट स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है. सो जस्ट स्टार्ट. सो इफ़ यू आर लाइक मी, जिसको बोरिंग रहना बहुत अजीब लगता था और नहीं पसंद था, सो लेट मी टेल यू ऑल दैट बोरिंग रहना इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ. सो जस्ट इमेजिन इफ यू वांट टू लूज वेट, सो यू हैव टू ईट द सेम काइंड ऑफ मील एवरी डे फॉर 365 days or maybe more than that to achieve the body that you want. तो अगर कोई चीज़ आप इतना रिगरसली, इतना कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली कुछ दिनों के लिए करते हो, तो आपका शेड्यूल तो बोरिंग होगा ही, बट दैट इज़ इवेंचुअली गोना गेट यू वेयर यू वांट टू गेट. डोंट वेट फॉर परफेक्ट टूल्स एंड अवेलेबिलिटीज. जो है, जितना है, उसमें से स्टार्ट कर दो. स्टार्ट योर जर्नी. लाइक आई वाज आल्सो द पर्सन जो सोचती थी कि यार मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, प्रॉपर आईफोन नहीं है, माइक नहीं है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी. पहले तो मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती थी क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बैक कैमरे से शूट कर पाऊँ. तो अभी धीरे धीरे चलते चलते मैंने बैक कैमरे से शूट करना स्टार्ट किया. अभी मेरे पास ट्राइपॉड आया है, माइक भी आया है, और अभी भी मैं एंड्रॉइड से ही शूट कर रही हूँ. पर अभी जब सोचती हूँ तब लगता है कि तभी शायद स्टार्ट नहीं करती ये सब सोच के, तो शायद फिर मैं कभी स्टार्ट नहीं करती, कभी ये चीज़ मैं नहीं कर पाती. सो स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव. So yes, this was everything that you should be knowing about the content of the book Steal Like an Artist, the first book from this trilogy. So let's move on to our next book, which is Show Your Work. So अभी first book पढ़ने के बाद you took an inspiration, you created something, फिर अभी उसे execute कैसे करना है. तो this book is all about that. So let's get into it. और I guess मैं trilogy explain करने के बाद you guys don't have to read the book. ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद. और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ थैंक मी. हाँ,